All right, hello and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to a special video as demanded by you on the topic of the Russia-Ukraine war. Let's start our discussion on the Russia-Ukraine war where we'll be discussing the history of it, the context, all relevant context, the global impact and especially impact on India. So we'll be talking about geography, we'll be talking about the timeline, we'll be talking about important events and everything around it. Let's start by understanding the geography of the region because I believe once you have geographical context, you would get to understand things better. You would be able to identify the names of the places which we'll be discussing. So let's start with that. Let me just quickly take you to a map where you would be able to see the geography. Just a second. Okay, so this is the map of Russia and Ukraine, the border, which is disputed, which is currently under war. And you can see Kiev. Kiev is the capital of Ukraine. You must be knowing that by now. And you can see a river passing through Kiev in the center of Ukraine. That's the Dnipro River, which is an important, you could say, geographical landmark in context of the war. Then on the north eastern side, you would see a city called Kharkiv, which we'll be discussing. What's the relevance of that? Coming southwards, you see the areas which are shaded under pink: Luhansk, Donetsk. These are under Russian control, and so are Zaporizhzhia and Kherson. And Crimea was annexed by Russia in 2014. I think most of you know that. Now, this Luhansk plus Donetsk region, जो आपको ये दिख रहा है, this together is called the Donbass region. We'll talk about that, what's the relevance. And ये जो आपको shaded parts दिख रहे हैं लुहानस्क और डोनेट्स्क के border पे, these are the front lines where currently the war is happening. अब इसके अलावा आपको एक चीज जो इस मैप में नहीं दिख रही है वो है कर्स्क रीजन, विच इज डीप इनटू रशिया वेयर यूक्रेन हैज ऑक्यूपाइड सम टेरिटरी. सो दैट प्लेस इज कॉल्ड कर्स्क, KURSK, कर्स्क. बाकी ये जो वाटर बॉडी नीचे आपको दिख रही है, दैट इज द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ एजोव. दोनों वाटर बॉडीज है नीचे विच आर शेयरिंग देयर बॉर्डर्स विद रशिया एंड यूक्रेन. सो दिस इज हाउ द मैप लुक्स लाइक. बाकी देखते हैं और कोई रेलेवेंट मैप है हमारे लिए. Let's see. These are some other towns which were attacked: Yarova, Sloyansk, Kramatorsk, etc. Yeah, okay. Here you see the Kursk region. So here is Ukraine, here is Russia, and here is the Kursk region जिसपे यूक्रेन ने लैंड कैप्चर कर रखा है. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू आवर पीपीटी नाउ. एंड ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है मैरियोपोल. यहाँ पे भी काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. द मैप विच यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, मैरियोपोल इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, चलो लेट्स कम बैक टू आवर पीपीटी एंड डिस्कस एवरीथिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग. ठीक है जी. Okay, I hope the PPT is now visible. The Russia-Ukraine war, let's begin. So we'll start with the historical foundations of the conflict and historical foundations of the region, of the culture as well. तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो बात है कुछ 998 CE की, 9वीं शताब्दी की या फिर 9th सेंचुरी की, जब इस रीजन को कहा जाता था कीवियन रूस. एंड कीवियन रूस वाज अ पावरफुल मिडिवल फेडरेशन जिसमें काफी सारे स्लाविक ट्राइब्स थे. स्लाविक इज दिस, यही वाला आपका यूरोप के वेस्टर्न पार्ट वाला, सॉरी ईस्टर्न पार्ट वाला रीजन, उसको स्लाविक कंट्रीज बोलते हैं आप अभी भी. सो जो स्लाविक के भी ईस्ट में ट्राइब्स थी, ईस्टर्न स्लाविक ट्राइब्स, they came together under a single political and cultural umbrella. And the state became the foundation of modern Russia, Ukraine and Belarusian identities. फिर 998 में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया जब प्रिंस व्लादिमीर, ये पुतिन वाले व्लादिमीर नहीं, इनका भी नाम लेकिन व्लादिमीर था. His name was Prince Vladimir the Great. He adopted Orthodox Christianity, which forever changed the spiritual and cultural landscape of the region. And Kiev became the mother of Russian cities, a title that underscores both the historical significance and also became a cause of dispute. अब कैसे कैसे यूक्रेन की आइडेंटिटी इवॉल्व हुई, कैसे कैसे उनका रिफ्ट आया रशिया के साथ, वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं. सो 9th सेंचुरी में थे हम, अब हम आ गए हैं लगभग 12th सेंचुरी के आसपास. 1240 की यह बात है, ईयर 1240, जब मंगोल इन्वेशन होता है. कौन करता है मंगोल इन्वेशन? द फेमस चेंगीज खान.
तो मंगोल होर्ड्स जो है कीवियन रूस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी डोमिनेंस खत्म कर देते हैं, एंड ये जो हिस्सा है ये अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में, अलग अलग शहरों में टूट जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। एंड दिस क्रिएट्स अ पावर वैक्यूम। पावर वैक्यूम मतलब अब किसी एक के पास पावर नहीं है, देर इज नो पावर एट द सेंटर एंड एवरी वन इज फाइटिंग फॉर पावर, सो दैट्स अ पावर वैक्यूम। ऐसे ही चलता रहता है, आपस में फाइट्स चलती रहती हैं, और फिर आ जाती है 14th सेंचुरी। अब 14th सेंचुरी में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। यूक्रेनियन टेरिटरीज बिकम कंटेस्टेड ग्राउंड बिटवीन पॉलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ इन द वेस्ट एंड एक्सपैंडिंग रशियन एम्पायर इन द ईस्ट। तो दो बड़े हेजिमोन बन जाते हैं, या दो बड़े आप कह सकते हो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक तरफ आपका है रशियन एम्पायर और एक तरफ है आपका कॉमनवेल्थ एम्पायर, विच लेड बाय ब्रिटिशर्स एंड द पॉलिश एंड द लिथुएनियन एंड सो ऑन। सो वेस्ट में उनका कंट्रोल आ जाता है एंड ईस्ट पे आ जाता है रशिया का कंट्रोल, एंड उससे क्रिएट हो जाते हैं कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिवाइड्स। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ट्रीटी आती है 1654 में, द ट्रीटी ऑफ पेरेयास्लाव। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना। अब इस ट्रीटी ऑफ पेरेयास्लाव में क्या होता है, जो कॉसैक हेटमेनेट होता है, मतलब जो ओरिजिनल यूक्रेनियंस होते हैं, दे सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिश प्रेशर अलाइंड विद द सारिस्ट रशिया। तो वो रशिया के सपोर्ट में आ जाते हैं, जो सार के रूल में होता है, दैट्स वाई सारिस्ट, TSAR, वहां के रशिया के रूलर को सार बोलते हैं। And they align themselves with Russia rather than the Western powers or the Polish people. And this treaty began centuries of Russian influence and control, a historical grievance Moscow still uses to justify claims over Ukraine कि भाई आपने तो हमारी आइडेंटिटी को चूज किया था, अब क्या हो गया। So that is why the whole आप कह सकते हो डिवाइड एंड द होल conflict of a certain sense, cultural conflict, began in the Treaty of Pereyaslav, after the Treaty of Pereyaslav in 1654. अब इसके बाद जो है रशिया के साथ यूक्रेन अलाइन हो जाता है और कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ सेंचुरीज बीत जाती हैं, एंड फिर आ जाता है सोवियत एरा। एंड यूक्रेन जो है सोवियत रिपब्लिक स्टेटस अपना कैसे इवॉल्व करता है उसकी बात करते हैं। 1922 में यूएसएसआर का एक फाउंडिंग मेंबर बनता है यूक्रेन। यूएसएसआर पता है आपको, है ना, सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी कहते हैं। एंड यूक्रेन बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, थियोरेटिकली इक्वल बट प्रैक्टिकली सबऑर्डिनेट टू मॉस्कोज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। यूक्रेन की लैंग्वेज और कल्चर जो है थोड़ा सा सप्रेशन फेस करते हैं 1922 में। फिर उसके बाद आता है 1932-33 का जेनोसाइड कॉल्ड होलोडोमोर। Stalin's forced collectivization created a man-made famine that killed an estimated 3.5 से लेके 7 million Ukrainians. This genocide, known as Holodomor, and local language में इसका मतलब होता है death by hunger, remains a profound trauma in Ukraine national consciousness. तो उनके मन में एक वो बैठ गया कि भाई इन्होंने हमारा जेनोसाइड किया था, होलोडोमोर जेनोसाइड 1932 स्टालिन की वजह से, ठीक है, फैमाइन आई। अब उसके बाद इनमें रिजाइनमेंट बढ़ती जाती है यूक्रेनियंस में। बट 1954 में क्या होता है, सोवियत के जो प्रीमियर हैं या फिर जो लीडर हैं, उनका नाम होता है निकिता क्रुशेव। अब ये निकिता क्रुशेव भाई साहब क्या करते हैं, अब आपको याद है 1654 में क्या हुआ था, 1654 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरेयास्लाव, और इसके कितने साल पूरे हो गए, इसके हो गए 300 साल पूरे। तो इस 300 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए निकिता क्रुशेव, जो रशिया के रूलर होते हैं, वो क्रीमिया जो एक रीजन है उसको रशिया ऑक्यूपाइड टेरिटरी से यूक्रेन ऑक्यूपाइड सोवियत यूनियन में ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई जाओ ऐश करो, क्रीमिया आज से आपका हुआ। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है ये आगे चल के 60 ईयर्स बाद या 6 डेकेड्स बाद कारण बनता है पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि 2014 में जब रशिया जो है क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है। ठीक है, उस पर आएंगे अभी हम। तो 1954 तक कहानी क्लियर हो गई कि क्रीमिया जो है ट्रांसफर हो चुका है अब यूक्रेन के पास। किसने ट्रांसफर किया, सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुशेव ने ट्रांसफर किया ऑन द 300th एनिवर्सरी ऑफ द पेरेयास्लाव ट्रीटी। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, पोस्ट सोवियत यूनियन यूक्रेन में क्या होता है और टेंशंस कैसे बढ़ती हैं। 1991 आ जाता है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यूएसएसआर बिखर जाता है अलग अलग टेरिटरीज में, एंड अलग अलग जो टेरिटरीज टूटती हैं यूएसएसआर से, उनको चॉइस दी जाती है कि भाई आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो या फिर आप रशिया को ज्वाइन करना चाहते हो। कुछ कुछ जो है रशिया को ज्वाइन कर लेती हैं, काफी सारी जो है इंडिपेंडेंट हो जाती है। आपका चेक रिपब्लिक हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बर्थ होता है मॉडर्न यूक्रेन का। 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेनियंस वोटेड ओवरवेलमिंगली फॉर इंडिपेंडेंस इन अ हिस्टोरिक रेफरेंडम, मतलब पब्लिक वोट कराया गया। दैट्स ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस ऑल रीजन्स इंक्लूडिंग क्रीमिया एंड डॉनबास। ठीक है, अब 90% लोग वोट करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए।
अक्रॉस ऑल यूक्रेनियन रीजन्स। 52 मिलियन उस टाइम पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है, जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है, कि उस टाइम 1991 में यूक्रेन वाज द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि यूएस और रशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूक्रेन के पास थे। क्यों थे? क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा रहा था यूक्रेन, एंड फिर अलग हुआ तो उनको बंटवारे में 1900 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिले और 2500 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मिले, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर, अ स्टेटस इट वुड सून रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना। ये अपना ये स्टेटस जल्दी ही त्याग देगा। क्यों त्याग देगा? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड आज तक जो है इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, आज तक इसीलिए कोई भी न्यूक्लियर पावर अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स रेलिंक्विश नहीं करता है, यूक्रेन की वजह से। मतलब यूक्रेन का एग्जाम्पल देख के। क्योंकि यूक्रेन के साथ क्या हुआ? यूक्रेन के साथ हुआ बुडापेस्ट मेमोरेंडम। अब ये बुडापेस्ट मेमोरेंडम क्या है? ये बुडापेस्ट में एक मीटिंग हुई जहां पे सब कंट्रीज ने कहा कि भाई हम जो है न्यूक्लियर रेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ, यानी कि हम अपने न्यूक्लियर त्याग देंगे। अब यूक्रेन जो है, भोला भाला यूक्रेन अग्री कर गया टू ट्रांसफर ऑल न्यूक्लियर वेपन्स टू रशिया एंड जॉइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहती है कि भाई आप जो है आपकी न्यूक्लियर पावर का यूज वेपन्स के लिए बिल्कुल नहीं करोगे, डिस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल नहीं करोगे, सिर्फ प्रोडक्टिव यूज करोगे। एंड यूक्रेन जो है अपने सारे न्यूक्लियर जो है त्याग देता है और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है। बदले में क्या लेता है? बदले में लेता है सिक्योरिटी की गारंटी कि भाई ठीक है मैं अपने न्यूक्लियर दे तो रहा हूं, लेकिन बदले में रशिया, यूएस और यूके प्लेज करेंगे कि दे वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट यूक्रेन सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स इंक्लूडिंग क्रीमिया। यानी कि हमारे बॉर्डर पे कोई नजर उठा के नहीं देखेगा और इसकी गारंटी आप लोगे, आप हमारी सिक्योरिटी करोगे, उसकी गारंटी लोगे, रशिया, यूएस और यूके। ठीक है, तो ये बात तय होती है बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ 1994 में। जो सिग्नेटरीज हैं वो कमिट करते हैं कि वो कोई थ्रेट्स नहीं यूज करेंगे, फोर्स नहीं यूज करेंगे यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की तरफ या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की तरफ। तो ये प्रॉमिस किया जाता है। अब क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम का वायलेशन करता है रशिया 2014 में, जब क्रीमिया को वो एनेक्स कर लेता है, जिससे उनका ट्रस्ट पूरी तरीके से, यूक्रेन का ट्रस्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी से टूट जाता है और बाकी नेशंस का भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से मन हट जाता है कि भाई यूक्रेन ने जो है न्यूक्लियर वेपन्स अपने दे दिए, देखो उनके साथ अब क्या हुआ, देखो कितना बेवकूफ बन गए वो लोग, है ना। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। एंड उसके बाद जो है पॉलिटिकल वॉर एक तरीके से स्टार्ट हो जाती है, पॉलिटिकल डिवाइड स्टार्ट हो जाता है। और यूक्रेन क्योंकि अब एक तरीके से थोड़ा सा वीक हो गया है, तो वो चाहता है कि वो अब नेटो के साथ अलाइन हो जाए। नेटो आप सबको पता है इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मिलिट्री अलायंस रादर, जहाँ पे मैक्सिमम आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं और यूएस है, जो कहते हैं कि अगर एक पे अटैक हुआ तो हम मानेंगे कि सब पे अटैक हुआ। आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी ये कहता है ना। अब 2004 में यूक्रेन में होता है ऑरेंज रेवोल्यूशन। क्या होता है ये ऑरेंज रेवोल्यूशन? मैसिव प्रोटेस्ट हो जाते हैं आफ्टर फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस फेवरिंग प्रो रशियन कैंडिडेट विक्टर यानुकोविच। प्रो वेस्टर्न कैंडिडेट विक्टर युशेंको अल्टीमेटली वन इन अ रीवोट, सिग्नलिंग यूक्रेन्स डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस एंड वेस्टर्न ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रॉड करके जो कैंडिडेट जीत जाता है उसका नाम होता है विक्टर यानुकोविच, और ये होता है प्रो रशिया, यानी कि रशिया के फेवर में होता है ये बंदा। अब लोग कहते हैं कि फ्रॉड हुआ और मैसिव प्रोटेस्ट हो जाता है, जिसको ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड क्योंकि प्रोटेस्ट हो जाता है, दोबारा से इलेक्शन कराया जाता है और इस बार जो कैंडिडेट जीतता है वो है विक्टर यूशेंको, जो होता है प्रो वेस्टर्न, यानी कि वेस्ट से ज्यादा अलाइंड होता है, रशिया से अलाइंड नहीं होता है वो। सो ही वन इन अ रीवोट व्हिच शोड दैट यूक्रेन नाउ वांट्स अ वेस्टर्न ओरिएंटेशन एंड अ डेमोक्रेसी। अब उसके बाद आ जाती है 2008 की नेटो समिट। बुचारेस्ट में ये लोग मिलते हैं एंड नेटो डिक्लेयर करता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया जल्दी ही हमारे मेंबर बन जाएंगे। अभी बने नहीं है, बन जाएंगे, अभी तक नहीं बना यूक्रेन मेंबर। Russia vehemently opposes this expansion, viewing it as an existential threat to its security and sphere of influence. रशिया कहता है भाई हमारा दबदबा कम हो जाएगा इस रीजन में, हमें सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा और कुछ हमारी ऊंच नीच होती है तो भाई हम पे तो अटैक कर लोगे आप लोग। तो यूक्रेन नहीं ज्वाइन करेगा नेटो, हम नहीं ज्वाइन करने देंगे। और इस वजह से इंटरनल डिवीजन जो है इन दोनों के बीच बढ़ जाता है, यूक्रेन और रशिया के बीच। यूक्रेन का जो रीजनल स्प्लिट है वो इंटेंसिफाई हो जाता है। वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स जो हैं यूक्रेन के, वो यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन फेवर करते हैं, जो वेस्ट वाले हैं, जो सेंटर वाले हैं। और जो ईस्ट वाले हैं और जो साउथ वाले हैं, जो बेसिकली रशिया के बॉर्डर के ज्यादा क्लोज हैं, वो अपने इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज रशिया से ज्यादा क्लोज रखना चाहते हैं। तो एक तरीके से इंटरनल डिवीजन हो जाता है यूक्रेन की पॉलिटिक्स में।
अब आ जाता है 2014 का क्राइसिस और वॉर की शुरुआत। क्या होता है 2014 में? 2014 से पहले के इवेंट्स का बिल्डअप देखते हैं हम कैसे होता है। तो यहाँ एक प्रोटेस्ट होते हैं विच आर कॉल्ड द यूरो मैदान प्रोटेस्ट। एंड ये जो यानुकोविच था, जो प्रो कौन सा था, प्रो वेस्टर्न इनका लीडर, वो हट जाता है पावर से। There is a revolution of dignity. In November 2013, Viktor Yanukovych unexpectedly suddenly suspended preparations for an EU association agreement. तो यानुकोविच को क्यों इलेक्ट किया गया था रिवोट में? बिकॉज वो यूरोपियन यूनियन के क्लोज जाना चाहता था, वेस्ट के क्लोज जाना चाहता था। लेकिन उसने अचानक से कहा कि अब मैं जो है छोड़ो, यूरोपियन यूनियन के एसोसिएशन अग्रीमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सस्पेंड कर दे रहा हूँ उसकी तैयारी। एंड ऐसा करते हैं, रशिया की तरफ चलते हैं। अब इससे जो है फिर से प्रोटेस्ट हो गया यूक्रेनियंस के बीच। एंड that protest जो happened in 2013 and 14 is called the Euromaidan protest. पिछला वाला था Orange Revolution, है ना? What began as a peaceful protest in Kyiv's Maidan, Nozelnosti Independence Square जिसको कहते हैं, it escalated into a full-scale revolutionary movement demanding Yanukovych's resignation and democratic reforms, जिसमें 130 लोगों की जान चली गई, वायलेंस हो गया। 2014 में बहुत डेडली वायलेंस हुआ जब गवर्नमेंट स्नाइपर्स ने प्रोटेस्टर्स पे फायर कर दिया। और 22 फरवरी को ये जो यानुकोविच है, जो अब सडनली प्रो वेस्ट से प्रो रशिया हो गया था, ही फ्लेड टू रशिया एंड यूक्रेन की पार्लियामेंट ने वोट कर दिया कि इसको हम पावर से हटा रहे हैं। ठीक है, ये 22 फरवरी तक पहुंच गए हम, 2014 तक। अब 22 फरवरी के बाद 5 दिन बाद क्या होता है? 27 फरवरी 2014 को कुछ अनमार्क्ड सोल्जर्स जो रशियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म्स में होते हैं, जो कि बाद में पता चलता है कि रशियन स्पेशल फोर्सेस के थे, वो आगे जाके कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कैप्चर कर लेते हैं क्रीमिया में। क्रीमिया मैंने आपको दिखाया था कहाँ पे, एकदम साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन में है, जो याद करो दिया गया था 300th एनिवर्सरी पे यूक्रेन को, है ना, बाय द पर्सन कॉल्ड निकिता। तो इन जो अनमार्क्ड सोल्जर्स हैं इनको बोला गया लिटिल ग्रीन मैन। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कुछ 15-20 दिन बाद मार्च 16 2014 को क्या होता है, एक कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम आता है। A hastily organized referendum took place under military occupation with no international observers, and official results claim that 97% voted to join Russia. ये रेफरेंडम कहाँ पे होता है? क्रीमिया में होता है। जल्दबाजी में ये रेफरेंडम कराते हैं मिलिट्री के रूल के अंडर, कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नहीं होता, और रिजल्ट्स कहते हैं कि क्रीमिया में 97% लोग रशिया ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड बाद में पता चला कि दिस इज कंसिडर्ड कंडेम्ड एज इलेजिटिमेट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब मार्च 16 को रेफरेंडम करा दिया गया, और मार्च 18 को क्या होता है, फॉर्मल एनेक्सेशन हो जाता है क्रीमिया का। प्रेसिडेंट पुतिन जो है ट्रीटी साइन करते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग क्रीमिया इनटू रशियन फेडरेशन। यूएन जनरल असेंबली जो है इसके लिए रेजोल्यूशन लेके आती है, एंड दे डिक्लेयर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एज इलीगल। 100 लोग जो है इसको इलीगल होने के फेवर में वोट करते हैं, 11 लोग कहते हैं नहीं है इलीगल, और 58 कंट्रीज जो है एब्सेंट रहते हैं वोटिंग से, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते वोटिंग में। Now, this marks the first forcible annexation of European territory since World War II, 1940s में जो हुआ था, violating the Budapest Memorandum, जिसमें अपने weapons दिए थे किसने? यूक्रेन ने, saying कि उसकी सिक्योरिटी करी जाएगी, violates the UN Charter and fundamental principles of international law। और इसके बाद अप्रैल 2014 में डॉनबास रीजन जो है वहां पे वॉर शुरू हो जाता है। इन अप्रैल 2014 आर्म्ड प्रो रशियन सेपरेटिस्ट सीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ओब्लास्ट व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड डॉनबास। They proclaimed the Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. What appeared as a spontaneous local uprising was substantially supported by Russia through advanced weapons। मतलब अंदर से ऐसा नहीं कि लोग ही थे सिर्फ, रशिया पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था थ्रू वेपन्स, थ्रू इंटेलिजेंस, tactical support, military volunteers, special forces, command and control infrastructure. But they kept on consistently denying direct involvement, claiming that only Russian citizens were fighting as volunteers. अब इसमें 2014 से लेके 2021 तक ये जो क्लैशेस चलते रहे इन डॉनबास एंड अदर रीजन्स, उसमें 14,000 लोगों की जान चली गई बिफोर द फुल इन्वेजन। अभी वॉर, एक्चुअल वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। एंड 1.5 मिलियन पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड। जुलाई 17 2014 को एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है विच इज द MH17 ट्रेजेडी। क्या है MH17 ट्रेजेडी? मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट नंबर 17 was shot down over eastern Ukraine by a Russian Buk missile, killing all 298 passengers and crew. International investigators ने कंक्लूड किया कि मिसाइल रशिया के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड से ही आई थी। So that is another significant event in the history.
अब इसके बाद क्योंकि वॉर शुरू हो जाती है एक तरीके से डॉनबास रीजन में, तो समझौता कराने की कोशिश करते हैं लोग, जिसमें बात आती है सबसे पहले मिन्स्क अग्रीमेंट की। 5 सितंबर 2014 को एक मिन्स्क प्रोटोकॉल, या जिसको मिन्स्क वन आप कहते हो, दिस इज ब्रोकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसके साथ में फ्रांस और जर्मनी मिलके बेलारूस की कैपिटल में ये मिन्स्क प्रोटोकॉल लेके आते हैं। अब इस प्रोटोकॉल में क्या क्या बात होती है कि इमीडिएटली बायलेटरल सीज फायर हो जाए, ओएससी मॉनिटर करेगा रशिया यूक्रेन बॉर्डर को, विड्रॉ कर लेंगे इलीगल आर्म ग्रुप्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे डॉनबास को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए। ठीक है। अब ये सीज फायर कुछ ही दिन में कोलैप्स हो जाता है और फाइटिंग फिर से बढ़ जाती है। उसके बाद आता है मिन्स्क 2 अग्रीमेंट फेब 12 2015 को, यानी कि अगले साल कुछ महीनों बाद। आफ्टर द फॉल ऑफ डिबाल्सेवे टू रशियन बैक फोर्सेस व्हिच इज अनदर रीजन इन यूक्रेन, अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट वाज नेगोशिएटेड। इस बार लीडर्स होते हैं एंजेला मर्कल फ्रॉम जर्मनी, हॉलैंड फ्रॉम फ्रांस, पुतिन फ्रॉम रशिया एंड पोरोशेंको फॉर यूक्रेन, who agreed to a 13-point plan including complete ceasefire in eastern Ukraine, withdrawal of heavy weapons, local elections in separatist regions, and Ukraine to restore control of its border with Russia. ठीक है, तो ये मिन्स टू अग्रीमेंट आ जाता है, इसके लिए अग्री कर जाते हैं ये लोग। अब इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा सा फ्रीज हो जाती है। डिस्पाइट पीरियोडिक सीज फायर्स, वायलेशंस केप्ट ऑन हैपनिंग कंटिन्यूअसली, कॉन्फ्लिक्ट बिकेम अ फ्रोजन फ्रंट लाइन वॉर विद स्पोरेडिक, मतलब कभी कभी आर्टिलरी एक्सचेंजेस होते थे, स्नाइपर अटैक्स होते थे। दोनों साइड ने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया मीन्स टू के प्रोविजंस, विद डिस्प्यूट्स ओवर सीक्वेंसिंग एंड इंटरप्रिटेशन कि भाई हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन द मिन्स्क अग्रीमेंट, जो एक तरीके से कह सकते हो चला 2015 से 2021 तक, लेकिन वायलेशन होता रहा। अब आ जाते हैं हम मेन हमारे क्रक्स पे, विच इज द 2022 फुल स्केल इन्वेजन, जहां पे हम ऑफिशियली मानते हैं कि रशिया यूक्रेन का प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो गया। एंड कैसे हुआ ये स्टार्ट? 2000 कह रहा हूँ, 21st सेंचुरी का ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। एंड लेट्स लुक एट द बिल्डअप ऑफ द वॉर। अब अक्टूबर 2021 से फेब 2022 तक मैसिव एक ट्रूप बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है बॉर्डर्स पे, स्पेशली रशिया की साइड से। सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है रशिया इज ब्रिंगिंग ऑलमोस्ट 1.5 लाख ट्रूप्स अराउंड द बॉर्डर्स इन बेलारूस, क्रीमिया एंड वेस्टर्न रशिया। द क्रेमलिन क्लेम दीज वर जस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। उसके बाद आ जाता है जनवरी और फरवरी 2022। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करते हैं यूएस, यूरोपियन यूनियन, नेटो टू प्रिवेंट एन इन्वेजन, बट रशिया डिमांडेड कि नेटो विड्रॉज फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड गारंटीज कि यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, जो कि वेस्ट ने डिमांड रिजेक्ट कर दी। फिर फेब में हम फेब 21 पे आ जाते हैं, फेब 21 2022, जहां पे पुतिन फॉर्मली रिकॉग्नाइजेस द डीपीआर एंड एलपीआर एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऑर्डरिंग रशियन ट्रूप्स टू enter into these regions as peacemakers, a clear prelude to broader invasion। डीपीआर और एलपीआर आपके वही डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिसको हम डॉनबास बोलते हैं टुगेदर, है ना। पुतिन ने कहा कि आज से ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और हम इनके पीस मेकर्स हैं, पीस कीपर्स हैं, तो हम चलो फौज चढ़ा दो यहाँ पे। और फिर फरवरी 24 को 3 दिन बाद सुबह 5 बजे इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। रशिया लॉन्चेस अ मैसिव मिलिट्री असॉल्ट विद क्रूज मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, ground forces, attacks from multiple directions, and announces a special military operation to demilitarize and denazify Ukraine। So ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि एक्चुअल वॉर किस दिन स्टार्ट हुआ, 24 फेब 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। अब रशिया का एडवांस शुरू हो जाता है, यूक्रेन का रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज बैटल फॉर कीव, द यूक्रेनियन कैपिटल। रशियन फोर्सेस अटेम्प्ट टू कैप्चर इट रैपिडली वाया एयरबॉर्न असॉल्ट ऑन द हॉस्टमल एयरपोर्ट एंड ग्राउंड एडवांस फ्रॉम बेलारूस। बेलारूस एक तरीके से आप कह सकते हो रशिया सपोर्टिंग कंट्री है एक, एंड वो भी बॉर्डर शेयर करता है विद यूक्रेन का नॉर्थ, है ना। तो यूक्रेनियन फोर्सेस bolstered by armed civilians and anti-tank missiles repelled the attack। by early April रशिया withdrew from Kyiv region entirely, क्योंकि कीव एकदम यूक्रेन के बीच में भी है। उसके बाद होती है सीज ऑफ मैरियोपोल। रिमेंबर मैरियोपोल मैंने आपको बताया था, साउथ में एक सिटी है, साउथ ऑफ यूक्रेन में पोर्ट सिटी है। द पोर्ट सिटी ऑफ मैरियोपोल endured a brutal 85-day siege। Russian forces used indiscriminate artillery and airstrikes, destroying 90% of the city। Ukrainian defenders, including the Azov regiment, held out in the Azovstal steel plant until May 2022, and 20,000 civilians lost their lives। उसके बाद एक और मैसेकर होता है, which is called the Bucha massacre। After Russian withdrawal from Kyiv, evidence comes of war crimes in Bucha and other towns, mass graves, executed civilians, hand-bound, systematic torture, and extensive atrocities।
और इसी बीच जेलेंस्की का स्टेटमेंट आता है, आई नीड एम्यूनिशन नॉट अ राइड। जब यूएस कहता है कि चलो हम आपको इवैक्यूएट करा देते हैं, तो वो कहता है मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे बंदूकें दो, असला बारूद दो। सो बेसिकली ही पुट्स अप अ ब्रेव स्टैंस कि भाई मैं यहीं रह के लड़ाई करूंगा। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या आता है, सैंक्शंस लग जाते हैं रशिया पे, फाइनेंशियल सैंक्शंस लग जाते हैं उनके, रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट सीज हो जाते हैं, रशियन बैंक्स के साथ स्विफ्ट का कोलैबोरेशन खत्म हो जाता है, एंड पॉलिटिकल एलिट्स भी उन पे सैंक्शंस लगा देते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, रशियन ऑयल इंपोर्ट पे बैन लग जाता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लग जाते हैं, लग्जरी गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, कॉर्पोरेट्स जो है विड्रॉ करने लगते हैं वहाँ से, एनर्जी जाइंट्स और बड़े बड़े एमएनसीज एंड टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ब्रांड्स भी विड्रॉ कर लेते हैं। सो फाइनेंशियल सैंक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड कॉर्पोरेट एक्सोडस, एक्सोडस मतलब बाहर आ जाना, छोड़ देना। सो $407 बिलियन की एड जो है यूक्रेन को प्लेज करते हैं बाकी लोग, एंड $118 बिलियन उसमें से यूएस कंट्रीब्यूट करता है, मेकिंग इट द सिंगल लार्जेस्ट डोनर। $50 बिलियन की मिलिट्री एड प्रोवाइड करी जाती है विद वेपन्स एंड इक्विपमेंट, जिसमें इनको हिमार्स रॉकेट सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस, लेपर्ड एंड एब्राम्स टैंक, F-16 फाइटर जेट्स एंड बहुत सारे आर्टिलरी दी जाती है। उसके बाद वॉर कैसे कैसे प्रोग्रेस करी 2022 से लेके आज की डेट तक, वो देख लेते हैं। तो डॉनबैस में तो एक तरीके से स्टेलमेट आ गया, यानी कि ना रशिया आगे बढ़ पा रहा है ना यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा। आफ्टर फेलिंग टू कैप्चर कीव, रशिया फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग द एंटायरिटी ऑफ डोनेट्स एंड लुहांस्क। द कॉन्फ्लिक्ट डिवॉल्व इनटू अ ब्रूटल वर्ल्ड वॉर वन स्टाइल ट्रेंच वॉरफेयर। ये देखो, ये जैसे ट्रेंच दिख रही है आपको, इस साइड लैंड है ऊंचा, बीच में एक गड्ढा है, और फिर इस साइड लैंड है। तो ट्रेंच स्टाइल वॉरफेयर हो रहा है, जिसमें देयर इज मैसिव आर्टिलरी बराजेस, इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन्स, डेवास्टेटिंग कैजुअलिटीज ऑफ फोर्टिफाइड डिफेंस लाइंस। अब एक और मेजर बैटल जो हुआ जून जुलाई में, दैट इज कॉल्ड द सीवलेरोडोनेट्स्क एंड लिशांस्क का बैटल, जिसमें रशिया कैप्चर्ड दीज टू सिटीज आफ्टर फाइटिंग। बैकमूट करके एक जगह है, वहां पे भी बहुत लंबा बैटल हुआ, लास्टेड 9 months विद 1 लाख प्लस कैजुअलिटीज। एंड अवदिवका करके भी एक जगह है जहाँ पे रशिया ने अपना कंट्रोल ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद खार्किव जो मैं आपको बता रहा था, एक सिटी मैप पे है, रशिया उस पर भी अटैक करती है इन 2024। 10 मई 2024 को रशिया एक नया ऑफेंसिव लॉन्च करती है नई साइड से, जहां पे वो यूक्रेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी खार्किव पे अटैक करते हैं। एंड ग्राउंड फोर्सेस क्रॉस फ्रॉम बेलगोरोड ओब्लास्ट, ओब्लास्ट मतलब एक रीजन कह सकते हो आप, कैप्चरिंग सेवरल बॉर्डर विलेजेस इंक्लूडिंग वोचांस्क एंड लिप्सी। उसके बाद एक ग्लाइड बॉम्ब कैंपेन ये लोग चलाते हैं, के बी ग्लाइड बॉम्ब्स यूज करते हैं जो सोवियत एरा में यूज किए गए थे, एंड इनसे जो है खार्किव का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं ये लोग, एंड यूक्रेन एयर डिफेंस को कंफ्यूज कर देते हैं। फिर भी यूक्रेन डिफेंस जो है अपना होल्ड करे रखता है किसी ना किसी तरीके से, एंड यूक्रेनियन फोर्सेस प्रिवेंटेड रशियन फोर्सेस फ्रॉम रीचिंग खार्किव सिटी इटसेल्फ 40 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। रीइंफोर्समेंट, काउंटर अटैक, वेस्टर्न artillery stabilized the front by June 2024, though the city remained under regular bombardment. अब खार्किव ऑफेंसिव करके रशिया ने दिखाया कि वो मल्टीपल फ्रंट से अटैक कर सकते हैं, यूक्रेन की डिफेंस को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब उसके बाद यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसेस का एक टाइमलाइन देख लो। खार्किव काउंटर ऑफेंस आता है आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, फिर खर्सन को लिबरेट करा लेता है यूक्रेन रशिया से। खर्सन इज आल्सो अनदर रीजनल कैपिटल विच लाइज अक्रॉस द नीप्रो रिवर। उसके बाद जून से सितंबर में काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करता है यूक्रेन, जहाँ पे दे मूव टुवर्ड्स अ प्लेस कॉल्ड मेलिटोपोल एंड सी ऑफ एजोव, जहाँ पे थोड़े से गेन्स कर लेते हैं वो रशियन टेरिटरी के, and they go 10-20 किलोमीटर in some sectors but fail to achieve breakthrough। और फाइनली अगस्त 2024 में कर्स्क में इंकर्जन कर लेता है यूक्रेन। In a stunning move, Ukraine launched a cross-border offensive into Russia's Kursk Oblast, capturing 1,000+ square kilometers, which is the first foreign occupation of Russian territory since World War II. Ukraine holds some captured territory as potential leverage for negotiation, कि भाई आप हमारा लैंड छोड़ो तब हम आपका कर्स्क छोड़ेंगे। ठीक है, अब इस वॉर में बहुत ज़्यादा ह्यूमन कॉस्ट देखने को मिली है। 40,000+ सिविलियन कैजुअलिटीज, 6.8 मिलियन रेफ्यूजीज, 4 मिलियन डिस्प्लेस्ड, 14.6 मिलियन स्टिल नीड ह्यूमैनिटेरियन एड। बहुत सारे वॉर क्राइम्स यहाँ पे हुए हैं। एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो रशिया गॉट आइसोलेटेड बाय द वर्ल्ड। यूएन जनरल असेंबली ने कंडेम किया इसको, 141 कंट्रीज ने फेवर किया। रशिया को G8 में से हटा दिया गया, फिर से ये G7 बन गया। काउंसिल ऑफ यूरोप में से हटा दिया गया।
नेटो ने जो है फाइनली फिनलैंड और स्वीडन को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब फिनलैंड और स्वीडन ने बेसिकली अपना न्यूट्रलिटी वाला पर्सपेक्टिव छोड़ के नेटो को ज्वाइन कर लिया डर के मारे कि भाई अब टाइम आ गया नेटो को ज्वाइन करने का, विच मेड नेटो 32 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूरोप का डिफेंस बजट बढ़ गया, जर्मनी का डिफेंस फंड बढ़ गया, यूएस ने अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दिया, चाइना अभी भी न्यूट्रल चल रहा है बिकॉज उसको रशिया से भी फायदा हो रहा है। एंड एनर्जी मार्केट में काफी रेवोल्यूशन आ गया बिकॉज यूरोप aggressively reduced Russian gas dependence by 40% to under 10% through LNG imports, renewable energy, etc. etc. Nord Stream pipelines were sabotaged and global energy prices spiked initially, but फिर stable हो गए। अब इंडिया का क्या यहाँ पे हिसाब किताब चल रहा है? इंडिया शोड एब्सटेंशन स्ट्रैटेजी, मतलब जब भी इस मुद्दे पे वोटिंग हुई यूएन जनरल असेंबली में, वी वर एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग, मतलब हमने फेवर में भी नहीं वोट किया, अगेंस्ट में भी नहीं वोट किया, बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग अ डिफेंस पार्टनरशिप विद रशिया, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है रशिया। 45% हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से आता है। एंड वी ऑल्सो परचेज द S-400 मिसाइल सिस्टम जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे काम आया। फिर एनर्जी अपॉर्चुनिज्म इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही सस्ता रशिया से ऑयल खरीदने की। एंड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी हमने दे दी कि भाई हम एक तरीके से रशिया के साथ खड़े हैं विदाउट नेमिंग इट। सो $50 बिलियन का इंडिया रशिया ट्रेड चल रहा है, 45% डिफेंस एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं, ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है 10x बढ़ गए हैं। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है इंडिया पे, डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा इंडिया पे प्रेशर आया है कि भाई आप रशिया को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, कंडेम क्यों नहीं कर रहे हो। क्वाड से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है। बाकी वेस्टर्न टाइज जो हैं पैराडॉक्सिकली हमारे थोड़े से मजबूत भी हो रहे हैं, क्योंकि यूएस के साथ हमारा रिश्ता बेटर हुआ है आफ्टर दिस, बिकॉज यूएस वांट्स इंडिया टू अलाइन विद इट। एंड हमारा जो डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन है वो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया कि भाई हम सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंट ना रहे, हम यूएस के साथ भी डील करें, फ्रांस के साथ भी करें, इसराइल के साथ भी करें। अब इससे हमें सीखने को क्या क्या मिला कि ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या क्या चल रहे हैं। चाइना लेके आया एक 12 पॉइंट पीस प्लान, बट कोई इसमें कॉन्क्रीट मैकेनिज्म नहीं थे। अफ्रीका एक पीस मिशन लेके गया जून 2023 में, जो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट हुई जून 2024 में, जिसमें रशिया को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसलिए ये भी आगे नहीं बढ़ा। ट्रंप ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया 2025 में, दोनों को बोला कि भाई अब समझौता कर लो, लेकिन अभी भी कुछ हो नहीं पाया है। एंड इस वॉर ने जो है इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, अकाउंटेबिलिटी फॉर वॉर क्राइम्स एक्सेट्रा। एंड सैंक्शंस लगाए हैं, वारंट्स लगाए हैं, हम सपोर्ट लगाया है। बट वही है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी गारंटी है अभी तक नहीं दी है, ना नेटो ने, ना यूएस ने, किसी ने। और रशिया ने जो है अपना ऑफेंसिव स्टार्ट चालू रखा है, और यूरोपियन डिफेंस जो है उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम यूक्रेन को। एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात करें तो बुडापेस्ट मेमोरेंडम जो एक तरीके से फेल हो गया है, एंड उस वजह से अब सारी कंट्रीज अपना न्यूक्लियर परस्यूट बढ़ा रही है। तो कंक्लूजन हमारा यही है कि हिस्टोरिकल रूट्स हमने देख ली, जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक देख लिया। एक अर्थक्वेक से मेरा मतलब है मतलब रिफ्ट इन द टाइज कह लो, यूक्रेनियन रेजिलियंस देख ली, इंडिया की कॉम्प्लेक्स पोजीशन देख ली, एंड फ्यूचर अनसर्टेन है ये भी देख लिया। 3 साल से ज़्यादा हो गए लड़ाई चलते हुए, 10 साल से ज़्यादा का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, और 1000 साल से ज़्यादा की हिस्टोरिकल एक तरीके से आप कह सकते हो मतभेद है। सो या दैट्स ऑल यू हैव इन द रशिया यूक्रेन वॉर। दैट कंप्लीट्स द टॉपिक इन एंटायरिटी। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से हमने सब कुछ पढ़ लिया। इसके अलावा आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स इन द टॉपिक। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।